हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 22 ज्योग्राफी का, यानी भूगोल का चैप्टर जो 22 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे लैंड यूज़ एंड एग्रीकल्चर, यानी भूमि का उपयोग और कृषि। ये चैप्टर जो होगा कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो एनआईएस में पढ़ते हों, चाहे सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सिलेबस बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन ये सब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, agriculture development of policy during to the 5-year plan. There is a most important plan here, agriculture development policy during to the 5-year plan. The agriculture in India is a during the 5-year plan has registered a phenomenal as growth. There is important here 5-year plans only here registration there are growth of crop agriculture here. In the time of independent partition of India is sub or continent or commercially line, resulting among the other is the acute storage of food and raw material for industries. Therefore, during the first 5-year plan is the 1951 to 56, the highest priority was the accorded to be increase of agriculture production, and nearly 1/3 of 31% of the total plant funds were allocated to agriculture sector. River Valley project were to be taken up. Irrigational facility and fertilizer plant were established, consequently a production of food grain increasing by 36% in a short span of 5 years. There is an important 5-year plan for the Indian agriculture. The second 5-year plan is a 1956 to 61. There is a period times important here was a focus on industry growth, and only up 20% of plan is a locations was devoted to agriculture. Still, food grain is a production exceed the target due to the extension of irrigation facilities and use of chemical fertilizers. There is important the use of chemical fertilizer for a duration of 1956 to 61. And during the third 5-year plan 1961 to 66, the priorities were self-sufficiency of food grain and meeting the raw material need of industries and increasing export. During this period, Green Revolution program was started on a small scale. There is an important time period of 1961 to 66. There 5-year plan of third. There is a Green Revolution established this time, but this plan is a fail to meet the target due to China irrigation. China irrigation is 1962, Indo-Pak War 1965. The two were this period time, and they are served to the prevalent and draft or during to 1956, 55 to 66. There is a 3 is a disaster come to this time, the Chinese aggregations and Indo-Pak War and draft during to 1965 to 60. This is a very great crisis of food that forced the Prime Minister L.B. Sastry to appeal to be people to absorb to fast once a week. There is one important point here. The Prime Minister L.B. Sastry here appealed to people to absorb to fast once a week. There is important because there is a very crisis time. The Chinese aggregation on this time and Indo-Pak War on this time and draft during 1956 to 60. There is important here.
During the next three annual plan is the 1966 to 69. There's an important here. Agriculture recorded to 6 to 9% of annual growth under to the impact of grain revolution. The production of food grain is touched 94 million tons. That is important. And the fourth plan 1969 to 74 aim to the 5% annual growth in the food grain. The high-yard variety HYV of seed and fertilizer use, new agriculture techniques, irrigation facility provide to the expand area of green revolution. The production of the wheat increasing sharply, but growth in a rice, oilseed and chorus grain, where the nominals is resulting in only 3% annual growth against the target of 5%. That is important. During the fifth plan period 1974 to 79, emphasis were given to be self-sufficiency in their food production and property is eradications. Stress was laid on the extensions of irrigation expansion in a cultivated area under HYV seed and grant of loans and the subsidy to be farmer. Dry farming is a propagated and this plan achieved it is a target successfully with the 4.6% growth here. Almost all food grain is expect of process witness to increase in a production here. The next sixth plan. The sixth plan has a 1980 to 85 imposes on the land reform. Use of HYV seed and chemical fertilizer and ground water resource and improving post-harvesting technology as well as a marketing and storage facilities here. The annual growth rate was 6%, is the highest ever during to the planned period. The food grain is a production reached to the 152 million ton. There is an important here, 152 million ton. The highest growth in a food grain is a process crosses is careless as was recorded during to the seventh plan. The seven plans are introduced of 85 to 90 and showing to our annual growth rate of 4%. The area of green revolution were expanding during this period. You know that there are 4% only. There is the area of green revolution were expanded during this period, and the eighth plan is the most important to 1992 to 97. The eighth plan is introduced of year 1992 to 97 and witness a tendency of escalation of food grain production will the oil seed register as a rapidly growth here. This is important eighth plans here. The next year ninth plan. The ninth plan is the 1997 to 2002. The witness of mixed success. The mixed success here. There is a locations in the food grain production and during this plan is a period National Agricultural Policy 2000. Was a formed and several is measuring were announced including watershed management and development of horticulture, agricultural credit and insurance schemes for crops. They're important. In the 10th plan is in 2002 to 2007, focus is a place on some stable management of water and land resource here and development of rural infrastructure to support agriculture, disseminations of agriculture technology and credit flow to the agriculture sector and agriculture marketing reform here. The next year, the new agriculture policy here. The government of India has announced to 28 July 2000 a new national agriculture policy here. 2000 in the light of change arising out of economical liberalization and globalization here. Liberalization and globalization is the most important on this period of time. The main aim of the politics are to achieve a more than 4% per annum is a growth rate in the agriculture sector. The growth based on the efficient use of resource and conservation of the soil, the water and biodiversity, and growth with the equality is reasons and among the farmers. Growth that caters to be domestical market and maximize benefit from the export of agriculture product and technological, environmental and
economically sustainable growth. There is an important period time here on policy of new agriculture policy 2020, and the focus of most important point here, and there is a 5 most important rule regulation here. The next year, the main feature of this policy are here privatization of agriculture and price protection of produce. There is important privatization and agriculture and price protection of producer. Land leasing of contract farming by the private companies. There is important. The next, arising there is a ceiling of the land holding. There is important. And involving their national is a livestock breeding to struggle to be meet a requirement of milk, meat, egg, and the livestock here and products. Protection of plant is a variety and improvement of horticulture crop is a livestock species and agriculture here. Liberalization of the domestic market by demonstrating of restriction on movement of commodities in the country. The improving the domestic and international marketing system is important here. And the next year, facilitating the flow of credit to be farmer against the pledging of their product and providing them most other facilities available to the manufacturing sector. The next year, keeping agriculture outside the regulator and tax collection system here provides an encouragement of consolidations of land holding and spreading up to the tendency or reform to recognize the right of tenant and sharecroppers. That is important. It may be noted that the policy are intentions of government, thus its success depend on the commitment of government to be convert it into the related. There is important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि विकास की नीति। देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। कहते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 वर्षीय योजनाओं में सरकार को कितनी तरह की जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार जो है पंचवर्षीय योजना सफल भी हुई। तो इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर के साथ बने रहें। अगर यहाँ पर देखा जाए पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि विकास की नीतियाँ, तो कहते हैं भारत सरकार ने साफ कर दिया था। भारत में कृषि की जो अद्भुत एवं अपूर्व वृद्धि जो है पंचवर्षीय योजना के अंतराल में हुई है। तो पंचवर्षीय योजना जो है काफ़ी सफल रहा है, इसलिए जो है आज भी जो है पंचवर्षीय योजनाओं को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आपको लक्ष्य प्राप्त रहेगा तो वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। जैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे ये होता है कि उसके अंतर्गत आप मेहनत कर सकोगे। और जो बच्चे अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं वो अपने जो है लक्ष्य तक कभी पहुँच भी नहीं पाते हैं। इसलिए पहले ही लक्ष्य रखिए और उसके बाद उस पर चलिए और चल के जो है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। तो यही यहाँ पर जो है पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य था कि सरकार जब बनती है तो पंचवर्षीय योजना जो है यहाँ पर स्टेबलेट होती है और उसी के अंतर्गत जो है भारत के विकास के रिगार्डिंग चलना होता है। कहते स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय उपमहाद्वीप का जो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो विभाजन हुआ उससे अन्य जो है समस्याओं के बीच खाद्यान्न की तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में भारत को विकट कमी का सामना करना पड़ गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि जैसे आपको पता है संप्रदाय के आधार पर जो विभाजन भारत का हुआ था और विभाजन के कारण क्या हुआ, उससे अन्य समस्याओं के बीच खाद्य तथा उद्योग के कच्चे मालों की आपूर्ति में भारत को बहुत विकट कमी का सामना करना पड़ा और बहुत ही जो है बुरी स्थिति से भारत गुजरा। अंततः प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 में सर्वप्रथम प्राथमिक कृषि उत्पादन को दी गई थी। कृषि क्षेत्र को सकल योजनाओं में निवेश पूंजी का 1/3 यानी 31% हिस्सा आवंटन किया गया। तो ये कहते हैं बहुत दुखदायी परिस्थिति थी इस समय, क्योंकि इनमें जो है 31% हिस्सा बांटन किया गया। नदी घाटी परियोजना आरंभ की गई, सिंचाई की सुविधा तथा उर्वरक कारखानों की जो है स्थापना की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर। और इसका परिणाम क्या देखने को हमें मिला, कहते हैं इसका परिणाम ये हुआ कि अनाजों का उत्पादन मात्र 5 वर्ष की अल्प अवधि में जो है 36% बढ़ गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देखा जाए द्वितीय यानी दूसरा, जिसमें 1956 से 61 यानी 56 से 61 में संपूर्ण ध्यान जो है औद्योगिक विकास में संकेंद्रित किया गया और कृषि क्षेत्र को योजना
बजट से 20% अधिक आवंटन प्राप्त हुआ और इसके बावजूद कृषि उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ, क्योंकि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ और रासायनिक उर्वरक का भरपूर उपयोग हुआ। तो देखा जाए तो 1956 से 61 में जो वृद्धि हुई, कहते 20% की वृद्धि हुई। और इसमें सबसे अधिक कारण क्या था? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना और सिंचाई के साधनों का जो है विस्तृत करना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी द्वितीय पंचवर्षीय। और तृतीय पंचवर्षीय योजना भी बहुत ही विडंबनाओं से गुजरी। कहते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत से जो है संकटों का सामना करना पड़ा, इसलिए इसका जो है अधिक वृद्धि नहीं हो पाई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है कि 1961 से 66 में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, कहते हैं अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई थी कि अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत को बनाना था, इस योजना का लक्ष्य था। और इसके साथ प्राथमिकता में औद्योगिक कारखानों कच्चे माल की आपूर्ति तथा निर्यात में वृद्धि भी शामिल थी। योजना काल के अंतर्गत ही हरित क्रांति कार्यक्रम के छोटे पैमानों पर जो है कार्यान्वित भी किया गया इस समय दौरान। कहते परंतु निर्धारित लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सका, क्योंकि जो आत्मनिर्भर करने की बात इसमें रखी गई थी वो हासिल नहीं किया गया। कारण इसका क्या था? इसके प्रमुख कारणों में 1962 में भारत चीन द्वारा आक्रमण करना, कि भारत को पर जो है चीन का आक्रमण हुआ, जिसके वजह से जो है ये जो लक्ष्य निर्धारित की गई थी वो असफल हो गया। और 1965 में भारत पाक युद्ध होना भी इसका सबसे बड़ा जो है कारण बना असफल होने का। और कहते हैं 1965-66 के अंतराल में दीर्घकालीन सूखे की समस्या काफ़ी जो है विकट समस्याओं को खड़ा कर दिया। तो देखा जाए अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई तो इसमें जो है काफ़ी जो है कारण युद्धों को ही माना जाता है, और सबसे बड़ा कारण जो है सूखा पड़ना। तो देखा जाए तो 1962 में जो था चीन द्वारा आक्रमण करना भारत पे, जिसकी वजह से ये सफल नहीं हुई, और 1965 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध भी इसका सबसे बड़ा कारण बना। और सबसे बड़ा कारण बना दीर्घकालीन सूखे का समस्या। भारत में सूखे की समस्या के कारण जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो असफल हो गया, यानी थर्ड जो प्लान थी एग्रीकल्चर में वो असफल हो गई। इन सब संकटों पर एक प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत में खाद्यान्न आपूर्ति का गहरा संकट प्राप्त हो गया, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी लाल बहादुर शास्त्री के जो है जनता की अपील करने पड़ी कि वे स्वच्छ पूर्वक सप्ताह में दिन में उपवास करें। देखिए कितनी विडंबनाएं थी, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको ये आदेश देना पड़ा, उनको लोगों को बताना पड़ा कि एक दिन उपवास करें, सप्ताह में एक दिन उपवास करें, जिससे भोजन की बचत हो सके। अब देखिए ये कैसी अवस्था रही होगी इस समय, जहाँ पर जो है प्रधानमंत्री को ये बात बोलना पड़ गया कि सभी देशवासियों से ये आवेदन है कि आप सप्ताह में एक दिन जो है उपवास रखिए। एक दिन उपवास रखने से ये होगा कि खाना की बचत होगी और इससे दूसरे व्यक्ति जो है इसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम था तीसरे पंचवर्षीय योजना असफल होने का। और इसका 3 फैक्टर तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें चीन का आक्रमण था, भारत पाक युद्ध था, और जो 1965 और 66 में जो सूखे का अकाल पड़ा था, इस सबसे बड़ी समस्याओं में से एक मानी जाती है। अगली 3 वर्ष की योजना जो था 1966 से जो है 69 के बीच में अंतराल में कृषि उत्पादन में जो है 6 से 9% की वृद्धि दर्ज की, यानी 6 से 9% वृद्धि दर्ज की, जो हरित क्रांति के प्रभावों के कारण ही सफल हुआ। अनाज का उत्पादन जो है 1994 में बिटिन टन दर्ज किया गया। यानी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर हम 3 पंचवर्षीय योजना को ले जिसमें 6 से 9% जो है वृद्धि हुई, और इसका कारण हरित क्रांति के प्रभाव ही थी। अनाज का उत्पादन जो है 94 में यानी 94 मिलियन टन दर्ज की गई। 94 टन आम बात नहीं होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी 1969 से लेकर जो है 74 तक जो है लक्ष्य अनाज में रखा गया। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी 1969 से 74 का लक्ष्य अनाज उत्पादन में 5% वृद्धि करना था। यानी पहले से लक्ष्य रखा गया कि कम से कम जो है 5% की वृद्धि होना ही चाहिए, और इसके लिए उन्नत एवं अधिक उत्पादक वाले बीजों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग जो है आधुनिक कृषि प्रविधियों को प्रयोग तथा सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध होने से हरित क्रांति के अंतर्गत लिए जाने वाले क्षेत्र का जो है काफ़ी विस्तार भी हुआ। कहते गेहूं का उत्पादन तीव्रता से बढ़ा, किंतु अनाज के अन्य
प्रकारकों में चावल, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि व तिलहनों में मामूली उत्पादन होने से केवल 3% वार्षिक अभिवृद्धि ही दर्ज की गई। तो ये कहते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जहां पर यह लक्ष्य रखा गया कि 5% अनाज में जो है वृद्धि करने के प्रावधान रखा गया। और कहते हैं ये हासिल भी हुआ। कहते हैं चावल, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि तिलहन में जो है मामूली उत्पादन होने से केवल 3% की वृद्धि हुई। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जितना बड़ा लक्ष्य रखिएगा उसके आसपास जरूर पहुँचिएगा। तो यही जो है चौथी पंचवर्षीय योजना भी बताई कि 5% यहाँ पर रखा गया था, लेकिन 3% तक ही वो कर पाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। क्योंकि कुछ देखिए, जब लक्ष्य आपने 5% का ही रखा तो 3% मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो यही हर एक विद्यार्थी को ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि अपना लक्ष्य जो है सदैव ऊपर रखिए और उसी रिगार्डिंग जो है मेहनत कीजिए। जब मेहनत कीजिएगा तो बेशकली अगर आप लक्ष्य तक ना पहुँच पाओ, लेकिन उसके आप आसपास जरूर ही पहुँच जाओगे। इसलिए लक्ष्य जरूर निर्धारित करो। उसके पश्चात था 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से जो है 79 तक में ज़्यादा महत्व रखा गया। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 79 में रखा गया था। इसका एक ही उद्देश्य था कि महत्व था कि अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता को पाने तक गरीबी उन्मूलन पर दिया गया। यानी दो बातों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखा गया कि अनाजों में आत्मनिर्भर बनना और गरीबी जो है बहुत हद तक कम करना। इसलिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया ताकि कृषि के उन संचालित क्षेत्रों में वृद्धि हो सके जिनमें जो उन्नत बीज बोए जाते हैं। यानी इसमें देखिए, कहते हैं ना, बीज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कृषि के लिए। तो इसमें जो है बीजों का वृद्धि करना बहुत महत्वपूर्ण रखा। और इसके साथ कृषि ऋणियों की सुविधाएं एवं कृषकों की सहायता राशि दिए जाने की नीति शामिल की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं शुष्क कृषि के विकास को बढ़ावा देने के जो है प्रचार प्रसार भी किया गया। यानी शुष्क जो है कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार भी किया गया। और इस योजना काल में जो है 4.6% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। अब देखिए, इसमें जो है 4.6% की वृद्धि हुई। तो कहते हैं ये बढ़ता ही चला गया, क्योंकि समय बदली, सोच बदला और प्रतिशत भी यहाँ पर बदल गया। सभी प्रकार के अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई, केवल दलहन का उत्पादन स्थिर रहा। यानी सभी उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, सिर्फ दलहन जो थी वो जैसे पहले थी उसी प्रकार के उत्पादन इसमें देखने को मिला। उसके पश्चात आता है छठी पंचवर्षीय योजना। कहते हैं छठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1980 से 1985 में स्टिमुलेट की गई थी। और इसमें कृषि योग्य जमीनों का विकास एवं सुधार कार्य, अच्छी किस्म के बीज और रासायनिक खादों और सिंचाई सुविधाओं के तहत सभी भूमि जल स्रोतों को शामिल कर संचलित क्षेत्र विकास करने इत्यादि कार्यों पर अधिक जोर दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि यह छठी पंचवर्षीय योजना कितना महत्वपूर्ण थी, जिसमें जो है अच्छी किस्म के बीज, रासायनिक खादों तथा सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना, जल स्रोतों का जो है विकास करना, इन सभी बातों पर जो है महत्व दिया गया। और इसके साथ फसल कटाई के बाद कृषि जो है प्रविधियों का उपयोग, कुशल उत्पादन के सुरक्षित जो सुनियोजित संग्रह तथा विपणन सुविधाओं को विकसित करना इत्यादि भी शामिल थे। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप कृषि के वार्षिक वृद्धि दर में 6% तक पहुंच गई। अब देखिए, ये जो है धीरे धीरे परसेंटेज जो है बढ़ता गया, क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ों पर ध्यान दिया। कहते हैं जमीनों के विकास पर ध्यान दिया, उसको जो ज़मीनों के सुधार कार्यों पर ध्यान दिया, अच्छी किस्म के बीज का उपयोग किया, रासायनिक खादों का उपयोग किया, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि किया। तो ये सब हो जाने के कारण जो है इसमें वार्षिक वृद्धि दर जो है 6% तक पहुँच गई, जो किसी भी योजना काल में सबसे अधिक उपलब्ध वृद्धि पर साबित हुई। यानी देखा जाए अब तक जितने भी जो बनाई गई थी, योजना लगाई गई थी, उन योजनाओं में सबसे अधिक जो है छठी पंचवर्षीय योजना सफलता किया। और कहते हैं अनाजों का उत्पादन जो था 152 बिलियन टन दर्ज किया गया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी देखा जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना ने काफ़ी हद तक जो है अपनी अचीवमेंट प्राप्त करने में सफल हुआ। उसके पश्चात आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना तो जो थी 1985 से 90 के दशक में रखा गया था। यानी 1985 से 90 के दशक में 7वीं पंचवर्षीय योजना को स्टिमुलेट किया गया। कहते हैं इसमें सर्वाधिक फसल उत्पादन दर्ज किया गया, जिसमें अनाज, गेहूं, चावल इत्यादि थे, और मोटे अनाज जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था।
और कहते हैं दलहन भी इसके अंतर्गत शामिल था। वार्षिक वृद्धि दर जो था सिर्फ 4% ही रही, यानी वार्षिक वृद्धि दर जो था सिर्फ 4% रही। हरित क्रांति के अंतर्गत इस योजना काल में काफ़ी कृषि योग्य क्षेत्र को देश के विभिन्न राज्यों में लाया गया। तो ये भी समस्या थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से 97 में दापी तिलहन उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, परंतु बाकी अनाजों में उत्पादन स्थिरता की स्थिति रही। यानी 1952 से 97 के बीच कहते सारे अनाजों में सिर्फ जो थी स्थिरता थी, सिर्फ तिलहन को छोड़ के, क्योंकि तिलहन जो था इस समय काफ़ी वृद्धि दर्ज किया गया। उसी तरह 9वीं पंचवर्षीय योजना जो था 1997 से 2002 में रखा गया लक्ष्य में मिली जुली सफलता मिली। इसमें अधिक सफलता देखने को नहीं मिला, मिली जुली सफलता जो है यहाँ पर नजर आई। और इसी योजना के काल में जो है राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का गठन भी किया गया, क्योंकि जब सफलता नहीं मिली तो इन्होंने जो है राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का गठन किया। और इसके अलावा बहुत से उपायों को जो है उद्घोषणा भी की गई, और कहते जिनमें जो है जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, बागवानी को विकसित करना, कृषि ऋण तथा फसलों का बीमाकरण आदि सब कुछ शामिल था। बीमाकरण को भी इसी 2000 में ही एस्टिमेट किया गया, क्योंकि इससे जो किसानों को नुकसान हो जाता था बीमा के अंतर्गत उनको सारी सुविधाएं दोबारा मिल जाती थी, इसलिए बीमा को भी इसमें जो है सम्मिलित किया गया 1997 से 2002 के बीच में। उसके पश्चात थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना काल जो था 2002 से 2007 में रखी गई थी। इसके मुद्दे पर ध्यान अधिक केंद्रित किया गया, वो था भूमि एवं जल संसाधन संरक्षण करना, कृषि के प्रोत्साहन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना, कृषि की नई प्रविधियों का प्रचार प्रसार करना, और कृषि क्षेत्र के लिए बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण के प्रभाव को बनाए रखना, और जो है कृषि विपणन में सुधार। तो कहते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 5 बातों पर स्टिमुलेट हुई। भूमि एवं जल संसाधन का संरक्षण, कृषि को प्रोत्साहन देना, कृषि के लिए जो है प्रचार प्रसार करना, कृषि क्षेत्र के जो है बैंकों को जो है ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना, और कृषि विपणन में सुधार करना। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख बातें थी। उसके पश्चात है नई कृषि नीति, काफ़ी महत्वपूर्ण है नई कृषि नीति। कहते हैं वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव से हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 28 जुलाई 2000 को नई राष्ट्रीय कृषि नीति की जो है उद्घोषणा की। कहते हैं वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव से हो रहे परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 28 जुलाई 2000 को नई राष्ट्रीय कृषि नीति को उद्घोषणा की। और इस नई नीति के जो है प्रमुख उद्देश्य एक लक्ष्य इस प्रकार से थे, यानी देखा जाए जो रखा गया उद्देश्य वैश्वीकरण और उदारीकरण। वैश्वीकरण तो आपको समझ में होगा ही कि विश्व के साथ व्यापार स्थापित करने में, और उदारीकरण का मतलब है जब विश्व के साथ हम व्यापार करते हैं तो उसमें जो है कुछ हद तक छूट दिया जाए, तो इसे उदारीकरण का नाम दिया गया, यानी लाइसेंस पे जो है अधिक कर नहीं लगाई गई थी, तो इसे उदारीकरण का जो है नाम दिया गया। और इसके उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार थे। पहला उद्देश्य तो यही था कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि को प्राप्त करना, यानी हर साल जो है 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना, ये लक्ष्य रखा गया। संसाधनों का उचित एवं कार्यकुशलता के साथ उपयोग करते हुए जल और मृदा तथा जैव विविधता का संरक्षण करना इसकी दूसरी नीति के अंतर्गत था। तीसरी बात यही थी कि वृद्धि ऐसी हो जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एवं वहाँ के कृषकों के बीच जो निष्पक्षता तथा जो है समानताएं कायम रहे। तो ये एक तीसरी पॉइंट थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगला पॉइंट जो यहाँ पर आया है, वृद्धि जो घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा कृषि उत्पादनों के जो है निर्यात को बढ़ा सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वृद्धि जो घरेलू बाजारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी था इस के अंतर्गत, और औद्योगिक पर्यावरण और आर्थिक रूप से सतत वृद्धि को भी यहाँ पर काफ़ी प्रोत्साहित किया गया। कहते हैं नई कृषि नीति के प्रमुख विशेषता इस प्रकार दिया गया था, कृषि का जो है निजीकरण था, कृषि उपज की जो है कीमत की सुरक्षा करना, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कृषि का जो है निजीकरण था, कृषि जो है उपज की कीमत की सुरक्षा रखना काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया था। कहते हैं निजी कंपनियों द्वारा जो है कृषि योग्य भूमि को जो है पट्टे पर और अनुबंध पर लेकर खेती करने की सुविधा दी गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि इस समय जो सरकार ने एक दूसरी नीति को अपनाया जहाँ पर कृषि योग्य भूमि को पट्टे और अनुबंध पर लेकर देने की सुविधा बनाई। खेतों की जोत पर लगी सीमाबंद पर जो है ढीले देते हुए उसे और अधिक बढ़ाना इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, कि खेत की जोत पर लगी सीमाबंदी पर ढीला देते हुए उसे और अधिक बढ़ाना।
पशुधन का जो है पालन पोषण कर उनमें जो है अभिवृद्धि को योजना को खेती के साथ शामिल करना, ताकि दूध, मांस, अंडे एवं अन्य पशु जो है उत्पादों की आवश्यकता की आपूर्ति होती रही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था इसमें कि दूध, मांस और अंडे एवं अन्य पशु उत्पादों की जो है वृद्धि की गई। खेती के साथ साथ विभिन्न जो है पौधों की प्रजातियों की सुरक्षित स्थिति रखना, बागवानी की फसलों में सुधार एवं तरक्की करना, पशुओं की विभिन्न प्रजातियों में सुधार तथा उन्नति लाना, इस जो है उद्देश्य रखा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यानी बागवानी की फसलों में सुधार एवं तरक्की करना, पशुओं की विभिन्न प्रजातियों में सुधार, इन सब चीज़ों पर जो है इसमें प्रोत्साहित किया गया। कहते हैं देश के जो है अंदर कृषि उत्पादित वस्तुओं के आने जाने पर लगे प्रतिबंध को भी हटाते हुए घरेलू बाजारों में उदारीकरण का व्यवस्था बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। कहते हैं घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विपणन व्यवस्था को जो है प्रवर्तन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कहते हैं अगर 8वीं बात करें तो किसानों के अपने कृषि उत्पादों को जो है धरोहर के रूप में रख कर बैंकों से या ऐसी अन्य सहकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकने की सुविधा भी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। साथ ही वे सभी सुविधाओं को जो है प्रौद्योगिकी निर्माण क्षेत्रों को उत्पन्न होती थी और इसके भी कृषि क्षेत्र में कृषकों को प्राप्त करने की सहायता किया गया। यानी किसानों को अपने कृषि उत्पादों को जो है धरोहर के रूप में रख कर बैंकों या ऐसी किसी भी सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने की सुविधा प्रदान की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं नियंत्रण एवं कर हरण के जो है कृषि को बाहर रखना, ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि नियंत्रण एवं कर हरण को जो है कृषि से बाहर रखा गया। उसके पश्चात था चकबंदी द्वारा छोटे और बिखरे जोतों को जो है एकजुट करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना और इसके साथ ही जो है कस्तरकारी एवं भू स्वामी के अधिकार को शीघ्रता से सुधार लाना, ताकि जो है कस्तरकार एवं जो है फसल बटाई लेने वाले को अधिकार को मान्यता मिल सके। चकबंदी द्वारा छोटे और बिखरे जोतों को एकजुट करने की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण था सरकार का यहाँ पर उठाया गया कदम। ध्यान देने की बात यह है कि नई कृषि नीति ने भारत सरकार के इरादे अभिव्यक्त कर दिए। अंततः इस नीति की सफलता इस पर आधारित है कि शासन की प्रतिबद्धता कितनी सशक्त एवं अस्थायी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर सरकार ने जो है नीति अपनाई, जो कि जरूरी था। और यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं को हमने हर एक बात को विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया कि कैसे ये सफल हुआ और क्या इसके कारण बने। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था हर एक बच्चों के लिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया पंचवर्षीय योजना, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी न मिले। और अगर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक त्रिपाण स्टडी सेंटर नज़र ना आए, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करने में ही समझदारी है। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा जहाँ पर सारे वीडियो उपलब्ध है। साथ में अगर आप जो है सिलेबस वाइज देखना चाहते हैं, क्लास वाइज देखना चाहते हैं, तो इसका भी प्रावधान है। यहाँ पर प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो सुचारू रूप से प्राप्त हो जाएगा। साथ में जो है कमेंट भी करना है, कमेंट कीजिएगा तभी पता लगेगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे बनाने वाले काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं, मैं भी काफ़ी प्रोत्साहित रहूँगा और काफ़ी इससे जो है आपको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश किया जा सकता है।